Hello guys, how are you? I am Parveen Sani and I have been selected as a probationary officer in Allahabad Bank. Today, I'm going to talk about my journey on becoming a management trainee in one of the prominent public sector bank in the country and how I prepared for the exam along with working for a private company and how you can achieve it too. I'm also going to talk about how I was able to score almost 80 marks in the interview. Not just that, there will be a surprise for all of you who are in the target group, which I'm going to talk about in the end. Now, I will talk about my journey first. So, I graduated in the year of 2016, and soon after I graduated, I landed up a job in a food industry. At that time, I was not at all interested in public sector bank or any other job. I was just concentrating on my job, and after almost 2 years, I had to leave the company and came back home. So at that time, I was giving some interviews, but wasn't able to get any job. Now you know how middle class parents are. They want their child to be employed every time, so they were always like, "job ढूंढो and तुम गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म क्यों नहीं फिल करते" and all that. So pressure was mounting upon me, and at the same time, one of my batchmate had become a probationary officer in an RRB, and I talked to him. I told him that this is a dilemma I'm facing, and he guided me. He told me that you should also give these exams, and you will definitely crack it. And there was another batchmate of mine who was preparing for the SBI PO 2018, and so I decided to fill the form of the SBI PO 2018, mainly because of the pressure of my parents which I was feeling, and not because I want to become a probationary officer at that time. So I know on the last 2 or 3 days before the registration closed, I fill up the form, and I started preparing for pre by my own. Alongside, I was also looking for the job, and trust me, at that time, I didn't know who a PO is, and what are his duties, how bank works, and what are its organization structure. And I gave my first pre, and after giving my pre, I was confident that I will crack it, and overconfident to be precise. So I asked the same friend of mine who was preparing for SPI की अब मेंस का बता मेरे को कैसे प्रिपरेशन करनी है, and he told me how to prepare, and I started preparing. Meanwhile, what happened, I got a job in textile industry. So they told me to join as soon as possible, but I had my mains exam lined up कि, so I told them कि I have to go for a marriage, and I will join in them. The following day the mains exam was going to be held. So, but my pre results came out and I missed the pre by 1.25 marks. So I called the company and I told them ki, can I join in early? And they said, "Oh, why not? You can come." So I joined that company. So now I'm going to talk about my schedule of how I was going to the my office, and how hectic was it. So I usually used to wake up at 6 in the morning and leave for my workplace for 7:15. From there, I used to go to the head office of my company from my bike, and from my head office there is a company bus who would take us to the manufacturing unit. As I was stationed at the manufacturing unit. At 9 a.m. we reached their work, and at 6 we left for the home. And I usually reach at 8:30 in the evening due to traffic, which is usually, how traffic, how people get stuck up in traffic in the evening. So now the next exam that I gave was IBPS PO. So IBPS PO 2018.
came, I filled the form again because of family pressure. I didn't want to get into PO, become a PO at that time. So, nonetheless, I never studied. I'm going to be very frank about it. So, I gave the pre, and as expected, I couldn't crack it. But what I started doing at that time was I started reading newspaper and I started collecting knowledge about role and duties of PO. So it started a spark in my heart to how what a fascinating life that is. I have started developing a liking for the same, and by the time I SBI PO 2019 notification came, I was sure कि अब तो भाई PO बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए. So I started preparing. After coming home, I usually schedule was कि बस में now what I've started कि I used to read newspaper in the morning on my mobile phone, and in the evening in the bus I usually watch some lecture on YouTube. uh, it may be of any topic. So और कभी अगर 10-15 मिनट का टाइम मिला in the office, I used to scroll down for the current affairs, daily current affairs. रात को 9:30 I usually started solving questions till 11:30, and then usually go to sleep, and the whole cycle revolves every day. Sunday I used to get a holiday. It was my holiday, so I used to give two sectional mock and review it. That is what my schedule was at that time. So SPI PO 2019 came. I gave my pre, and I was sure कि इस बार तो निकल जाएगा. And I started preparing for the mains after taking 2 or 3 days gap break. So pre results came in, and I see कि I wasn't able to crack the pre, and this time कट ऑफ से 4 नंबर दूर था मैं. तो पूरी तरह टूट गया था, और वैसे ही फील कर रहा हूँ जैसे अभी आप मुझसे कुछ लोग फील कर रहे हो. अपने आप को फिर से रेडी किया कि नहीं, ये तुझे करना है किसी भी हालत में. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर RRB PO 2019. सो व्हाट माय स्ट्रेंथ इज़ कि आप मुझसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करा लो, मैं कर दूंगा, बट स्पीड इज़ नॉट माय फोर्टे. तो स्पीड बहुत बुरी है मेरी. कोई भी एग्जाम उस टाइम पर थी, अब तो काफ़ी अच्छी हो गई है, बट उस टाइम पे बहुत बेकार थी. एंड वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया वॉज इंग्लिश. और कि RRB वीडियोज़ में इंग्लिश तो होता नहीं, प्री में इंग्लिश तो होता नहीं है. सो आई गेव द प्री एग्ज़ाम, एंड जैसे ही प्री एग्ज़ाम देकर आया, आई न्यू दैट कि नहीं होने वाला भाई, प्री तेरा नहीं होने वाला, भूल जा. अगेन डेविस्टेटेड, ब्रोकन, क्या करूँ क्या ना करूँ क्या करूँ. सो बट सोच लिया था तो करना तो था यही. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई वीकनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ्स. एक बात याद रखना कि आप दोनों चीज़ों पर काम करो, अपनी स्ट्रेंथ पर भी और वीकनेस पर भी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो एंड मैंने रात को 1 घंटा और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया एक्स्ट्रा. एंड आई गेव द IBPS प्री दिया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज एबल टू क्रैक द प्री एग्ज़ाम. And this is what I'm talking about, the IBPS 2019, IBPS PO 2019. तो इस बार पहली बार मेरा प्री क्रैक हुआ, और कट ऑफ से मैं अप्रॉक्सीमेटली 8 और 9 मार्क्स ज़्यादा ला पाया. फर्स्ट टाइम प्री क्रैक हुआ. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्ज़ाम. एक वीक का ऑफ लिया मेंस के लिए. लकीली वर्क फ्रॉम होम मिल गया. सो 7-8 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिल गया, जो उसकी वजह से मैं मेंस की प्रिपरेशन कर पाया, स्पेशली करंट अफेयर्स की, जो मेरी अच्छी नहीं थी उस टाइम पर. आई क्रैक द मेंस, एंड द इंटरव्यू schedule came in, and I joined an institute of on how to crack the uh, interview actually. So I joined it and learned a lot from it. Not just how to crack an interview, but how to excel in life
in your profession. That is what I have learned there. So ऑफिस में बहाना लगा है कि यार MBA के एग्ज़ाम्स हैं, मैं MBA कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअली में मैं नहीं कर रहा था, एंड हफ्ते में 3 दिन ही आ पाऊँगा. सो आई यूज़ टू गो टू उन 3 दिनों में आई यूज़ टू गो टू द इंस्टीट्यूट, लर्न lot of things there, and I gave my interview and finally got selected. So now I will give some tips about how I have cleared the exam and how you can do it too. ये बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं जो हर कोई देता है, बट they actually works for you. So number one is work on your basics when it comes to the arithmetic section. बेसिक्स पे काम कर लो, फंडामेंटल्स पे काम कर लो. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा अर्थमेटिक का जो आप सॉल्व नहीं कर सकते. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा. बस फंडामेंटल्स पे काम करिए. इवन अगर आप ट्रिक्स यूज करते हैं प्री में, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि वो ट्रिक काम क्यों कर रही है, एक्चुअल में उसका फंडामेंटल क्या है, बेसिक्स क्या है उसके. सो this is my first advice to you. And the second one is learn which questions you have to skip in the pre. I know a lot of you यूजुअली क्रैक द प्री, तो आपको ये पता होगा. मुझे नहीं पता था सीरियसली, और इसकी वजह से मेरा कभी प्री नहीं क्रैक हो पाया. बट आई लर्न इट लेटर कि कुछ क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ना होता है. नंबर 3 इज़ रीड करंट अफेयर्स रेगुलरली. 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं. किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ यार, किसी भी पर्सन की XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई स्पेशली रेफर नहीं करूँगा. स्टार्टिंग में सिर्फ रीड करो. जब एग्ज़ाम आएगा मेंस का, तब 4-5 जगह से अच्छी जगह से उठा लेना. अभी के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स रेगुलरली रीड करो. द फोर्थ वन इज़ रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली. सिर्फ यही एक चीज़ है जो इंटरव्यू क्रैक करा देती है. इतने ही सिलेबस होता है इंटरव्यू क्रैक करने का, उसके बाद कोई सिलेबस नहीं है. सिलेबस सिर्फ न्यूज़पेपर है आपका. इसको अगर ढंग से न्यूज़पेपर को पढ़ लोगे, पता कर लोगे कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्यों चल रहा है, उसके रीजंस क्या है, क्या उसके रेपरकशंस होंगे, तो आई थिंक यू विल क्रैक एवरी GD एंड PI. नंबर 5, solve puzzles and coding decoding as much as possible. बहुत ज़रूरी है. मेरी पजल्स बहुत वीक थी. कोडिंग डिकोडिंग फिर भी ठीक थी, मेरी पजल बहुत वीक थी बहुत. और मुझे लगता था कि पजल्स में के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं होती, दिमाग ज़रूरी होता है. और जो कि बहुत गलत था. आपको पजल्स और कोडिंग डिकोडिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी पजल आपकी सॉल्व हो जाएगी. तो ये थी मेरी 5th tip. And the 6th one is stay away from distractions as much as possible. Yes, एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लोग 4 या 5 साल तक, 6 साल तक एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं, बट फिर भी नहीं हो पाता. आई फील रियली सैड फॉर देम. बट आई थिंक जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे लगता है उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि वो अपने गोल्स को अपने डिस्ट्रैक्शन के बाद रखते हैं. अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को गोल के बाद रखोगे, तो सीरियसली गाइस, आप कोई भी एग्ज़ाम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट बैंक, यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम इफ़ यू वांट. तो मान लो मुझे कोई मूवी देखने का मन कर रहा है, बहुत अच्छी मूवी है, मैं ये नहीं कहता कोई घटिया मूवी है या इसकी अच्छी रेटिंग्स नहीं है, IMDb में 9 उसके स्टार्स हैं, तो मैं वो देखना चाहता हूँ. मे बी मुझे उससे कुछ सीखने को मिलेगा, बट ट्राई करो कि मैं उसको अपने जो मेरा टाइम टेबल है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं उसको देखूँ. देखना बुरी बात नहीं है, बट प्लीज़ डिस्ट्रैक्शंस को बाद में लेकर जाओ, पहले गोल के ऊपर फोकस करो. So these were all the tips that I can give you for the pre and mains. And now I will come on how I was able to score almost 80 marks
इन द इंटरव्यू। और मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा हिंदी में बोल पाऊँ। मैं काफ़ी देर से इंग्लिश में बोल रहा हूँ और काफ़ी लोगों को उससे प्रॉब्लम भी होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो ये मैटर करता है, जिस पे ये मैटर करता है कि आप सिलेक्टेड होंगे या नहीं होंगे, और वो 90% लोगों से पूछा जाता है, तो आप कहोगे कि क्या बात कर रहा है यार, मुझे पता है कि एक क्वेश्चन है जो 90% मुझसे पक्का पूछा जाने वाला है और उस पर मेरी सिलेक्शन डिपेंड करती है, तो मैं तो उसके ऊपर सारी जान लगा दूंगा ना अपनी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो उसको छोड़ने वाला नहीं उस क्वेश्चन को। बट 95% लोगों को पता ही नहीं होता कि उस क्वेश्चन का असली मीनिंग क्या है और क्या इंटरव्यूअर हमसे जानने की कोशिश कर रहा है, कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए और उसका मेथड क्या है। लेट मी टेल यू गाइस कि ये क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मुझे पागल बोल रहे होंगे आप में से कुछ कि ये कैसा कैसा बेहुदा मजाक कर रहा है तू, कि सिर्फ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का आंसर ढंग से दे दो और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि यार इसकी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई है और मुझे यही सिखाया गया था इंस्टीट्यूट में मेरे मेंटोर ने कि एक क्वेश्चन को कर ले तो ढंग से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की वैल्यू मेरे हिसाब से तो 70 प्लस है in your overall interview marks। बट if I talk about my mentor, वो कहते हैं कि 90 प्लस वेटेज सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो लेट मी गिव यू वन स्नैपशॉट ऑफ what my introduction was. So this was my introduction. This 2-page thing was my introduction. Now what I want from you, I will definitely tell you कि इसमें क्या लिखा है, कैसे इसको अप्रोच किया जाए। बट बिफोर दैट आई वांट वन थिंग फ्रॉम यू एंड दैट इज़ कि आप एक आंसर रेडी करिए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पे। क्वेश्चन यही है सेम, उसे लिखिए, सब कुछ सच लिखना, 1% भी झूठ नहीं होना चाहिए। याद रखना, 1% भी झूठ नहीं होना चाहिए। उसे लिखो और अपने पास रख लो। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, मैं परवेज सर को अपना आंसर जो मैंने रेडी किया था विद द हेल्प ऑफ माय मेंटोर, मैं उसको पोस्ट कर दूंगा और आप रिलेट कर सकते हैं कि कहाँ आप गलत जा रहे थे। और बस याद, और आपको ये आंसर कहीं पर भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी टारगेट बैच में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ टारगेट बैच के लिए होगा। आई वांट परवेज सर की इस वीडियो को एज कि आप सिर्फ टारगेट बैच वालों को ही दे तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि ये बाहर जाए। आई डोंट वांट फॉर दोज पीपल टू लर्न समथिंग विच दे शुडंट, मतलब उनको ना मिले तो अच्छा है। यू ऑल नो कि उसके रीजंस क्या हैं। सो आई विल टेल यू कि कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए एंड ये सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। बट ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, सॉरी अबाउट दैट। तो इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। एंड द सरप्राइज विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कि जो मेरे मेंटोर थे, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया एंड show me the path of how to crack interview, not just any bank interview, you can crack any interview if you know these things, these secrets, these ingredients that I think they are to crack any interview। वो हमारे साथ एक लाइव सेशन पे आने वाले हैं। His name is Gurmeet Sethi. He is a retired personnel from Indian Army. He has trained more than, I इवन डोंट नो द नंबर, बट एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि उन्होंने मोर देन 500 to 700 स्टूडेंट्स को टॉप 20 स्कूल्स में सिलेक्टेड करवाया है। आई वांट टू नेम अ फ्यू। आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कलकत्ता, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, और इवन ओवरसीज भी आप अगर बात करना चाहो
तो सर ने वहाँ पर भी भेजा है। बहुत सारे लोग आते हैं सर के पास और उनसे सीखते हैं। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने लोगों को बैंक के लिए प्रिपेयर कराया है, उन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कराया है, उन्होंने सीएस को ट्रेन किया, उन्होंने डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। ही इज़ ऑल्सो बिजनेस कोच, बिजनेस मेंटोर। उन्होंने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जाकर लेक्चर दिए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में जाकर वो लेक्चर देते हैं। और यू विल नो जब वो सेशन आएगा कि क्यों मैं उनकी इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, कि वो इतने अच्छे हैं। आपको पता चलेगा। हम एक सेशन रखने वाले, एक छोटा सा टॉपिक हम डिसाइड कर लेंगे आपस में, बट आई थिंक इट शुड बी अबाउट इंटरव्यू। एंड आई दैट इज़ ऑल आई कैन, वी विल मेक कि हम कैसे उसको लेंगे। हम यूट्यूब लाइव जाएंगे या गूगल हैंगआउट्स पे कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे। मैंने सर से बात की, मैंने परवेज सर से बात की है, जिसकी वजह से हम, ये गिफ्ट है मेरा और परवेज सर की तरफ से आप लोगों को और गुरमीत सर की तरफ से, कि आप लोग जान पाओ कि कैसे इंटरव्यू को क्रैक किया जाता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, and I will post my answer of my introduction later. I will send it to Parvez sir, and he will post it in one of the group of target batch. So thank you guys, and we will catch up later. Maybe I can also give you one or two session if it is possible, if Parvez sir allows me to. Thank you guys.